Start. So when we talk about the specifically in terms of flower, and flowers has two main parts. There are total four parts: calyx, corolla, androecium, and gynecium. A complete flower will be having all the four parts. But incomplete flower, जिसे कहते हैं, any of the part is absent over here will be known as an incomplete flower. Specifically, when we talk about the calyx, corolla are known as accessory whorls, where androecium, gynecium are known as reproductive or the essential whorl. Okay, next. So we talk about the structure of the androecium. This is a male reproductive part, consists of a whole of stamen. Their number and length will be varies from different species to the, मतलब उसका size variable होगा, number of stamens का different number will be also different for different species. Next. So specifically, stamen consists of two main parts. One is filament, another is anther. Filament is a stalk-like structure which will be bearing the anther. And anther is the part which consists of your pollen grain. They are the part from where the pollen grains are released. Okay, the main function of this filament is to provide the proper position to the anther so that the pollen grains will be released in timely manner as well as a specific position, so that will be with the help of biotic or abiotic medium, it will be transferred to the respective stigma. When talk about anther, anther is a terminal typically bilobe. बाइलोब मतलब जिसमें दो लोब रहेंगे, हर एक लोब में आपके दो चेंबर्स रहेंगे, हाँ, दो थिका रहेंगे, they will diathecous. Specifically, often longitudinal groove will be running along with it, lengthwise separating the thica. और अगर हम लोग उसमें देखेंगे, अगर ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 चेंबर्स, मतलब हर एक लोब में हम हमारे हर एक इसमें देखेंगे तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक चेंबर को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया. The chamber is known as microsporangia, and each microsporangia consists of sporogenous cells. Sporogenous cells मतलब the cells which are capable to produce spores. Am I clear? Okay, next. A typical pollen grain structure will be consist of total 4 layers: epidermis, endothecium, middle layer, and tapetum. Endothecium is a layer which is the fibrous connective tissue रहेंगे जो कि हमारा सपोर्ट का काम करते हैं. Epidermis the outermost layer, middle layers, and the tapetum is the layer which provide जो हमारा स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, जो हमारे आर्कियोस्पोर से जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, जब हमारा उसका मियोसिस होके माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होके माइक्रोस्पोर होता है, उस टाइम पे जो नरिशमेंट डेवलपमेंट देने का काम कौन करता है? टेप्टम करता है. नेक्स्ट आया था ना क्वेश्चन ये बोर्ड में. टेप्टम इज द वन जो कि नरिशमेंट देता है हमारे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को. Cells of the tapetum, the dense cytoplasm generally have the more than one nucleus. Then in younger anther, each sporangium consists has sporogenous tissue at the center, and which consists of compactly arranged homogeneous diploid cells, which are nothing but the sporogenous cells, which are also known as microspore mother cells. Okay. At the end, the microspore mother cells which have been there, which are sporogenous cells, undergo meiotic division. So these are the pollen sac which is microsporangia. इसके अंदर हमारे sporogenous cells. So these are the one जिससे हमारा pollen mother cell which is known as microspore mother cell. Meiosis होगा, इससे हमारा tetrad बनेंगे. So बोले ये तो 3 है, उसके बैक साइड में 1 है, सारे 4 बनेंगे. आज 4 will be released. याद रखना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब meiosis होता है, it will release 4 male gametes. याद रखना है. Okay, next. ऑलरेडी जब स्पेसिफिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं, वंस द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर. pollen grain mother cell or the microspore mother cell undergo meiosis, it will form a 4 haploid microspore. This 4 haploid microspore will develop next इथे पुढे सुनिए, हाँ थांब. Microspore will develop the 2 layers. The outermost tough layer, which is made up of specialized protein, which is known as sporopollenin, is known as exine. और this exine consists of thinning, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो innermost layer होता है intine, which is made up of pectin and cellulose. Okay, और जहाँ पे हमारा thinning होगा, these are the thinning region are known as germ pore through which the pollen tube will be arise. Next. Okay. Pollen grain, this is male gametophyte exine, which is I already said कि this is made up of specialized protein sporopollenin. Sporopollenin is provide the like this is the one protective layer which provides a strength
you can see ki dormant dormancy to the or standing ability to the pollen grain, they can survive even in high temperature, harsh condition में भी survive कर रहे थे. This is the because of sporopollen which is not easily get degraded. Okay. Entire innermost wall जो कि मैंने बोला था cellulose और pectin से बना हुआ है. Next. Okay. Now the pollen grain which has been from microspore mother cell का उसमें entire exam develop हो गया. Now this is the pollen grain. This pollen grain undergo mitotic division. देखो जब तक माइक्रोस्पोर बन रहा है तब तक मियोसिस मतलब मदर सेल से माइक्रोस्पोर, ये हो गया मेरा मियोसिस. नाउ इसके बाद होगा माइटोसिस. पहला बार माइटोसिस जब होगा एक लार्ज सेल रहेगा एक स्मॉल सेल रहेगा. लार्ज सेल इज योर वेजिटेटिव सेल, स्मॉल सेल इज योर जेनेटिक सेल. सेकंड स्टेज में क्या होगा, जेनेटिक सेल्स विल बी स्टार्ट टू फ्लोट इनसाइड. जब फ्लोट होना चालू हो जाएगा पड़े ओके नो वो फ्लोट होना चालू हो जाएगा. उसके बाद उसका क्या होगा और फर्दर चेंजेस हो जाएंगे अंदर. यहाँ पे आपका जो जेनेटिक सेल है उसका फिर से माइटोसिस होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू मेल गैमेट. स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कि आपका pollen grain का वायबिलिटी डिपेंड होता है कि देयर आर सर्टेन केसेस कि देयर आर सर्टेन pollen grains which will be viable for the longer period of time. वायबल मतलब वो अगर एक बार रिलीज हो गए दे कैन इवन सेवरल मंथ्स तक, सेवरल मंथ्स के बाद भी किसी स्टिग्मा के ऊपर जाके बाइंड वो अटैच हो जाएंगे, दे जर्मिनेट. बट इन केस ऑफ देयर आर सर्टेन प्लांट जैसे कि हमारा राइस हो गया फिर हमारा व्हीट हो गया, उनमें once the pollen grain released from the anther they need to reach to the destination before 30 minutes. अगर वो 30 मिनट्स के अंदर वो स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंचे जर्नलिस्ट चांसेस कि वहां पे नहीं होगा, वहां पे आपका ये नहीं होगा कि उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, तो देयर इज नो वो वेस्टेज हो जाएगा. ओके इनफैक्ट pollen grains are very rich in nutrients and there are lots of celebrities who prefer to have a pollen grain as a nutrient supplement as well. बहुत सारे celebrities होते हैं. yes देखो इनफैक्ट वी व्हेन वी लर्न इन सबसिक्वेंट लर्न pollination उसमें भी हम लोग देखा. so there are certain group of certain species of plant which produces edible pollen grain. edible मतलब कि they can be specifically in case of bat Caryopteryphili जिसे हम लोग कहते हैं. नॉक्टर्नल प्लांट रहेगा, डल इन कलर रहेगा, बट द उसका जो एक टिपिकल फ्लेवर जो होता है या एरोमा होता है दैट इज योर फर्मेंटिंग एरोमा होता है. सो दैट कि एज यू अवेयर कि बैट को दिखता नहीं, दे ट्रैवल थ्रू द अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, इट विल बम्बार्ड ऑन देयर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इट विल रिवर्ट बैक. और अकॉर्डिंग टू दैट उनमें ये होता है चेंजेस, सो दे विल परसीव एंड द थिंग्स विल बी एबल टू. उसके साथ साथ उसका एक टिपिकल स्मेल होता है, फर्मेंटिंग स्मेल, और यही रीजन होता है कि दे जब बैट को खाएंगे तो उससे पॉलिनेशन होने के लिए हेल्प आउट होती है. ओके तो -190 आपका लिक्विड नाइट्रोजन में सेवरल इयर्स तक आप ये करके रख सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो. pollen grains some of like Parthenium and carrot grass. ये देखो one of the most allergic it might be lead to the asthma and the bronchitis. Itis is a word whenever you heard itis is an inflammation. bronchi का inflammation म्हणजे आपल्या श्वासनलिकेचं इन्फ्लामेशन, सूज आहे त्याला बोलतो आपण बॉडीमध्ये. So it will be the one known as bronchitis. For example, you must notice कि अस्थमा एलर्जी, अस्थमा का किसी पेशेंट को अटैक आता है तो उनकी सांस फूल जाती है. एक्चुअली होता क्या है, तो हमारा विंड पाइप गेट कंस्ट्रिक्टेड ना, जब हम लोग वो पंप लेते हो तो उससे होता क्या, दिस पंप डायलेट द थिंग, वो हमारे विंड पाइप को डायलेट करे. अभी सिंपल सी बात है, चॉकअप हुआ है, थिंग्स विल बी डायलेट. तो आपने देखा हिंदी में ऐसा टमाटर करते ऐसा करते they relax because उस टाइम पे wind pipe get relax होगा तो क्या more and more air will be pumping, that उनको relax feel होता है. okay so there are like Parthenium and the certain grasses which causes allergy. okay Gynoecium is a female reproductive part. it will lead to the like single pistil होगा तो monocarpellary, multiple रहेंगे तो multicarpellary, polycarpellary. if the pistils are fused सेमिकार्पस, they are अपोकार्पस. ये हम लोग ने 11th में लर्न किया. इसमें तीन मेन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्पेसिफिकली व्हेन टॉक अबाउट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, so stigma is a landing platform, is a place where the pollen grains are landed. Or this style is an elongated part which connects your stigma to the ovary, and ovary is the basal bulb part which consists of ovule. Next. Okay, inside the ovarian cavity there will be ovule which are present and where the placenta is located. What about placenta? It's a reproductive connection between the
बॉडी एंड द डेवलपिंग हमारा नया यंग वन डेवलप, उसके बीच में कनेक्शन होता है. Okay, asking arising from the placenta ovules megasporangia are the present. You can see over here, यहाँ पे रहता है. Number of ovules in ovary depend, maybe one हो सकता है जैसे कि wheat paddy mango में, और मेन पपाया वगैरह में बहुत ज्यादा होते हैं. अभी megasporangium का डेवलप, usually ovule is attached to the placenta by means of stalk-like structure which is known as funicle. Junction between the ovule and the funicle is known as hilum. Each ovule has one or two protective covering known as integuments. Outermost layer of the ovule is known as integuments and small opening known as micropyle. And बराबर micropyle के opposite में क्या रहेगा? चलाजा. It will be a चलाजा. Opposite to micropyle जैसे चलाजा, which is a basal part. हाँ. Specifically अगर मैं बोलूँ, ये दिखने में structure है, but actually in case of typical most of the angiospermic plant the structure is anatropous. मतलब अपसाइड डाउन. माइक्रोपाइल पॉइंट मतलब आइडियली देखा जाए तो पॉलन ट्यूब ऊपर से आ रहा है, तो हमारा माइक्रोपाइल एंड शुड बी अबव ना, बट ये उल्टा होता है. हमारा माइक्रोपाइल एंड विल बी लोअर साइड, चलाजर एंड जो क्लोज एंड बेसल पार्ट विल बी अपर साइड, एनाट्रोपस ओवल जिससे हम लोग कहते हैं. ओके, इसके अंदर एक मिनट इंटरग्यूमेंट के अंदर देयर विल बी से बंच ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट नोन एज न्यूसेलस, जिसमें आपका रिजर्व फूड होता है. मोरओवर इसी न्यूसेलस के अंदर इनसाइड द न्यूसेलस एम्ब्रियो साइक दैट इज योर फीमेल गैमेटोफाइट. यही न्यूसेलर सेल्स में से एक सेल मैच्योर होगा, दैट इज नथिंग बट योर मेगास्पोर मदर सेल, और यही मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड. नेक्स्ट. अंदर है तो ते सांगा संदर्भ. ओके, सो बाय द टाइम वो कनेक्ट हो रहा है तो सुनो अभी क्या होगा. तो व्हेन टॉक अबाउट द माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसका मियोसिस होगा, विल फॉर्म अ मेगास्पोर टेट्राड. उसमें से 3 विल डिजेनरेट, ओनली 1 विल बी द वन व्हिच विल बी एक्टिव. और हमारा पहला अगर हम लोग देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट सबसे पहला सेल कौन सा आता है? मेगास्पोर मदर सेल. ओके, ये जो 3 डिजेनरेट होने के बाद एक जो एक्टिव होता है उसे कहते हैं हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर. क्या कहते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर. Functional megaspore grows in size. After that, it will follow 3 mitotic division, but only cytokinesis. Only cytokinesis, not karyokinesis. मतलब एक single nucleus से two nucleated stage, 4 nucleated stage, finally it come to the 8 nucleated. Once the 8 nucleated stage has been formed, 3 nucleus migrate towards the upper side, that is your chalazal side, which is no, and gradually a cell wall karyokinesis will cytokinesis will take place, results into development of 3 cells towards the chalazal, which is known as antiphotocyst, and 3 cell migrate towards the 3 nucleus migrate towards the micropolar end, which is known centrally placed X cell, and 2 sides it will be a synergis. Synergis consist of the filiform apparatus which will guide the pollen tube to reach to the X cell, and centrally is a secondary nucleus which is present. This will be deployed in nature. So at the end of the embryo sac, it will be consist of 7 nucleated. उसमें से 1 haplo, 6 diploid. Sorry, 1 diplo, 6 haploid, या फिर हम लोग इसे 7 या फिर 8 nucleated 7 cell stage कहते हैं. इससे लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना. जब मैं 8 nucleated बोलूंगा तो सारे के सारे haploid आएंगे. जब मैंने बोला 7 nucleated, मैं उसमें 1 diploid 6 haploid, बराबर. डिप्लॉयड कौन सा? सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है ना, एंटीपोडल से हैप्लॉयड. अगर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों इंडिविजुअल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल कौन से? 3 एंटीपोडल, 3 एक एपरेटस वाले, और एक एज ए कंप्लीट वन 7 सेल, बराबर है. ओके, वंस दिस हैज बीन डन, उसके बाद आता है हमारा पॉलिनेशन. ओके, okay, so
दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू दी फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इज नोन एज योर पॉलिनेशन। अगर उसमें देखेंगे हम लोग बेस्ड ऑन दी देयर आर थ्री टाइप्स, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। ओके, सबसे पहला आएगा ऑटोगैमी। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, अरे एक ही फ्लावर है, उसके एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब सेम फ्लावर के इसमें से एक ही फ्लावर एंथर टू स्टिग्मा, एक ही, उससे कहेंगे हम लोग सेल्फ ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। इन फ्लावर्स द एक्सपोज पार्ट इज सिग्मा वेरी क्लोज। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, वेस्टेज ऑफ द फ्लावर नहीं, मतलब पॉलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता, बट यहाँ पे ये होने के लिए दोनों का सिंक्रोनी होना बहुत जरूरी है। ये तो पता चला हमारा फ्लावर ओपन हुआ, उस टाइम पे एंथर तो मैच्योर हुआ लेकिन सिग्मा मैच्योर ही नहीं है, तो भले ही वहां पे रिलीज नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। जिससे हम लोग डाइकोटोमी पढ़ते हैं, प्रोटोएंट्री प्रोटोगामी, पहले एंड्रोजन मैच्योर हो रहा है, ऐसा होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और यहाँ पे इसलिए जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये दोनों सिंक्रोनी होना बहुत जरूरी। सेल्फ पॉलिनेशन एग्जांपल देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, एक आता है चास्मोगैमस, एक आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अभी ये होता क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर दी वन जो कि क्लोज फ्लावर्स होते हैं, मतलब फ्लावर मैच्योर अंदर ही, मतलब वो ओपन होगा ही नहीं। अभी सिंपल सी बात है यार, फ्लावर ओपन होगा नहीं, एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों अंदर ही है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। देयर आर नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जिटोनोगैमी। दोनों फ्लावर ओपन हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा चास्मोग्रामस फ्लावर, ये वाला क्लिस्टोगैमस क्लोज, चास्मोग्रामस ओपन। Self pollination do not open clistogamous flower. Anther and stigma lie very close. They are autogamous. Most when anther dies in the floral bud, pollen grains come in contact with the stigma. फ्लावर बर्ड कंडीशन में ही, मतलब ये फ्लावर हमारा लोअर पोजीशन पे रहेंगे, वो बर्ड ही रहेगा, उसके अंदर उसी फ्लावर के अंदर एंथर मैच्योर हुआ, पॉलन ग्रेन किया, स्टिग्मा उधर ही अंदर ही हुआ, तो पॉलिनेशन अंदर ही होगी। ओके, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन पे गए थे हम लोग। ओके, now जिटोनोगैमी मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट द सेम प्लांट। एक ब्रांच है इस फ्लावर का, इस फ्लावर, दोनों डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट सेम है, तो फंक्शनली इट्स अ क्रॉस पॉलिनेशन, बट एक्चुअल देखा जाए तो एक ही प्लांट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर है ना, तो जेनेटिकली सिमिलर है लेकिन फंक्शनली दो अलग प्लांट इन्वॉल्व है, तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन। यस, Xenogamy, transfer of pollen grain from anther to stigma of different plant. It brings genetically different pollen grains to the stigma. Okay, now before that मुझे एक बताना, अगर हम लोग देखेंगे ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए, we'll talk about the advantages of self pollination. Yeah. Cool. We'll talk about advantage. मतलब ऐसी कौन सी चीज है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन विल स्कोर बेटर देन दी, तो उसके पास आंसर बोल, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओवर द क्रॉस पॉलिनेशन। नाही मला ऍडव्हान्टेज, मला ते हे नको सांगू की बाबा कसं होतं ते नको सांगू, आय जस्ट नीड अ ऍडव्हान्टेज. Why self pollination is better than the cross pollination? करते ही तू सांग. Why self pollination is better than the cross pollination? ओके, अजून म्हणजे काय त्याला एकाच फ्लावरवर उडी मारायची म्हणून देत आहे. हैं? इधर ही है ना, इधर से इधर ही जाना है ना, यहाँ से यहीं पे जाना है, तो फिर भी लाइक द वन इजी, जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना है। पहला चीज, सबसे पहला हमारा पॉलन ग्रेन का वेस्टेज कम हो,
दूसरा इट्स अ श्योर शॉट मेथड। हाँ, पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं रिक्वायर्ड होता है ना। ये सारी चीजें होती हैं हमारे इसमें। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस, several genes will be carried from one generation to next generation, no variations, तो unwanted genes भी as it is carry forward होते हैं। when talk about the cross pollination, it's not the sure shot method। दूसरा वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है, यू गेट द जेनेटिक वेरिएशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन, इज रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन। ओके, सेकंड, अभी जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन से आपको वेरिएशन कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक फ्लावर है, उस फ्लावर का जो एक फ्रूट है, वो फ्रूट है ना जिसका साइज बहुत छोटा है बट टेस्ट बहुत बढ़िया है, बराबर है। और यहाँ पे मेरा दूसरा फ्रूट है विच इज लाइक जिसका अगर मैं देखूँ साइज फ्रूट का बहुत बड़ा है बट टेस्ट उतना खास नहीं। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूंगा, इसका जो फ्लावर ये हो जाएगा मैच्योर, मतलब स्टिग्मा मैच्योर होगा, के ऊपर इसके पॉलन ग्रेन डस्ट कर दूंगा, सो दैट। बट आप बोलोगे सर मैंगो के ऊपर मैं कल पपाया ये करूंगा या फिर मैं दूसरा कुछ और फ्लावर, वैसा नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम स्पेसिस और मे बी सम डिफरेंट स्पेसिस, ये सब स्पेसिस हो सकते। हाँ, तो वहां पे अगर हम लोग करेंगे तो यू गेट दी सिमिलर, एक डिफरेंट टाइप का फ्रूट मिलेगा विच विल बी बिगर इन साइज एंड बेटर इन टेस्ट। वैसे हम लोग जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, डिफरेंट एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो विल टॉक अबाउट द एजेस ऑफ पॉलिनेशन। सो देयर आर डिफरेंट, एक आता है लिविंग, दूसरा आता है नॉन लिविंग। जो लिविंग आएगा दैट विल बी बायोटिक एजेंट, योर इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, arboreal rodents, reptiles, etc. When talk about wind, abiotic, wind and air, water. Next, okay, specifically, okay, मैंने जैसे पहले भी बोला था, इस जब पर्टिकुलर पॉलिनेशन हम लोग जब लर्न करते हैं ना, तो दो चीजें हम लोग को याद रखनी है। When you talk about the abiotic agent, the flower हमारे इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। और भी कॉन्स्पिशियस एंड इनकॉन्स्पिशियस, क्या कॉन्स्पिशियस एंड इनकॉन्स्पिशियस बोल। कॉन्स्पिशियस मतलब कि द वन विच आर क्लियरली विजिबल, इनकॉन्स्पिशियस मतलब विजिबल नहीं। अबे ऐसा है क्या भाई, एक जगह में बहुत ब्राइटली फ्लावर है तो हवा बोलेगा मैं मेरा रुख उस तरफ ले लेती हूँ, या वाटर का नदी बोलेगी यार नहीं इस तरफ बहुत मस्त मस्त कलरफुल फ्लावर है तो मेरा नॉर्मल फ्लो खड़कपाड़ा से जो वायले नगर की तरफ जा रहा है, आई टेक इट टू फ्रॉम द बेतुरगढ़ पाड़ा, तो वहां से हरियाली है, ऐसा कुछ वहाँ पे ग्रीनरी, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बिरला कॉलेज किधर से आता है, वहाँ पे नए नए बस बच्चे आ रहे हैं तो वो फ्लावर लेके आएंगे मेरे को देंगे, ऐसा कुछ है। इट वोंट बी लाइक दिस आर दी नॉन लिविंग थिंग्स। वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे हमारा चीजों का इन्वॉल्वमेंट, तो आपका ये स्ट्राइकिंग का कलर का कुछ भी ये नहीं है, फ्रेगनेंस का कुछ भी लेन देन नहीं। तो दिस आर दी वन विच विल बी फ्रेगनेंस फ्री, जिसमें आपका क्या होगा, और नेक्टर नहीं होगा, फ्रेगनेंस नहीं होगा, कलर भी डल, कलर भी आपका कलरलेस होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज इन नंबर। अभी विंड के थ्रू लेके जाना है तो इट मस्ट बी प्रोड्यूसिंग लाइक, यहाँ से तुम्हें बोला सामने के इसमें मारना है, एक मतलब आपको टारगेट हिट करना है, तो एक ही मैंने बोला एक ही पत्थर में मार, एक ही पत्थर में नहीं होगा ना। इफ आई गिव यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देयर आर चांसेस कि आपका हिटिंग रेट बढ़ चांसेस हो जाएगा, तो वो हो सकता है। दूसरी चीज, for pollen grains produce in large number, they are light in weight so that they can, अगर मैं स्पेसिफिकली विंड की बात करता हूँ तो वैसे, तो लेट्स लर्न वन बाय वन। सबसे पहले आएगा हमारा विंड के थ्रू। विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली, एंड सच फ्लावर्स आर नोन एज एनिमोफिलस। यहाँ पे pollen grains are produced in large number, they are light in weight। अगर स्टिक नॉन स्टिकी रहेंगे और स्पाइनी रहेंगे। स्टिग्मा की बात करें, स्टिग्मा में भी स्टिकी एंड फेदरी हो सकता है। ओके, आपका मोस्ट कॉमनली ग्रासेस फैमिली में आता है, जैसे कि हमारे मोनोकॉट में अगर देखा जाए तो आपका जितने भी वीट, ज्वार, उस कैटेगरी में आ जाएगा मेज में। ओके, नेक्स्ट, ऑलरेडी बोला मैंने। फिर आता है हमारा वाटर। when the pollination takes place with the help of water, such type of pollination known as hydrophily। such type of plants or flowers are known as hydrophilous flower। ये दो टाइप का होता है, एक एपीहाइड्रोफिली, एक एपी मतलब जब हमारा पॉलिनेशन वाटर सरफेस के ऊपर होता है, और बिलो होगा तो हाइपो। अगेन यहाँ पे अगर मैं एपी की बात करता हूँ तो स्पेसिफिक
gravity of pollen grain will be less than the water so that it will be float. Hypohydrophily होगा तो specific gravity will be more so that कि water will be so that कि water में sink down हो जाए और वहां पे respective side पे आ जाए. They are producing large number, again flower inconspicuous हो जाएगा, ribbon like और आपका collar like structures रहेंगे उनके. Next, seagrass is the example. फिर आता है हमारा, ये भी हो गया. एनिमल्स की जब बात करते हैं तो वहां पे देयर आर सर्टेन, जैसे कि अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटोमोफिली. अभी इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, मोस्ट कॉमन इज, हाँ उसमें भी अगर देखा जाए तो बीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट कर. ओके, सो इंसेक्ट के थ्रू होगा तो इट विल बी द वन, इसे एंटोमोफिली कहते हैं हम लोग. यहाँ पे लार्ज कलरफुल फ्लावर्स रहेंगे, फ्रैग्नेंट रहेगा, रिच इन नेक्टर रहेंगे, सो दैट की नेक्टर लेने के लिए जब इंसेक्ट्स आएंगे तो दे विल बी द वन जो नेक्टर सक करेंगे एंड फ्लोरिंग दिस विल बी ट्रांसफर. स्मॉलर फ्लावर फ्रॉम द इनफ्लोरेंस, क्योंकि देखो स्मॉल साइज रहेगी फ्लावर की तो विजिबल नहीं होगा, बट क्लस्टर में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे तो इंसेक्ट विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स. ओके, पॉलन के जनरली स्टिकी हो जाएंगे तो बैक को स्टिक हो जाएंगे और उसके साथ हो जाएंगे, ट्रैवल कर लेंगे. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जैसे हमारे अंतर किसी कांटेक्ट में आएगा, मतलब एनिमल जैसे नेक्टर सक करने के लिए आएगा तो इंसेक्ट के ऊपर वो डस्ट हो जाएंगे, इट विल ट्रांसफर टू द अदर. So now, before that, we also learned the like different type of pollination में क्या आता है हमारा ऑर्निथोफिली, दूसरा आता है पैराथेरपी. ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स की जब बात करोगे तब वहां पे आपका कल को बोलना मत कि सर ईगल, फाल्कन ये लोग पॉलिनेशन नहीं करेंगे. स्मॉल बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड, सनबर्ड, दीज आर दी बर्ड्स विच कैरी आउट दी पॉलिनेशन. नहीं तो पता चला कल को बोलोगे सर पैरट करेगा तो फिर हमारा ईगल, घार, फाल्कन, पेलिकन कल को हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड. हमिंग बर्ड एवढाच असतो. कबूतर नाही रे, कबूतर, हमिंग बर्ड आणि सनबर्ड छोटेच असतात, एवढेच असतात. किंगफिशर पण किंगफिशर चहा. चलो, okay. Now come to the outbreeding devices. When we talk about outbreeding devices, what do you mean outbreeding? So these are the techniques which used to prevent the self pollination. सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे लाइक सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा हमारा, हाँ कधीपासून बोलते माझा फोन ऐकते. तो कनेक्ट हो वाला हवा. नको काय, अच्छा त्या सचिन सरांचा नंबर आहे ह्याच्यात. सचिन सरांचा नंबर आहे ह्याच्यात. जाऊ दे नको. चलो ओके. सो हम लोग टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, वी कैरी आउट दी सर्टेन आउटब्रीडिंग ड्रिल्स. सबसे पहला अभी यहाँ पे क्या होता है, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन. अगर सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या, कैसे कर सकते हैं कि हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा जिस टाइम पे एंथर मैच्योर हो रहा है उसी टाइम पे अगर स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा तो देन
भले ही पॉलिन जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाए, there will not be chances of fertilization, so pollination आगे कंप्लीट होगा ही नहीं। सिमिलरली वैसे अगर हम लोग देखेंगे पहले एंथर स्टिग्मा मैच्योर है, पॉलिन ग्रेन्स बाद में रिलीज होंगे तो देयर विल बी लाइक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, या फिर हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे, तो दिस आर सर्टेन टेक्निक्स। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं कि लाइक अगर हम लोग देखेंगे पॉलिन ग्रेन और स्टिग्मा भले ही हमारे एक ही टाइम पे मैच्योर हो, pollen grains also get transferred to the stigma, but the pollen grains which are transferred to the stigma which are not compatible, उनका germination नहीं हो, तो germination नहीं होता, इसे self incompatibility, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। So when you talk, okay, now consider this is the flower which is the bisexual flower, जिसमें हमारा एंथर स्टिग्मा मैच्योर हुआ और यहाँ से एंथर भी मैच्योर होकर उसने पॉलिन ग्रेन रिलीज किया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। बट ये पॉलिन ग्रेन जैसे ही हमारे उस फ्लावर के पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आए ना, वो जर्मिनेशन होंगे ही नहीं, उनका पॉलिन ट्यूब नहीं होगा, बिकॉज वो दे आर सेल्फ कंपेटेबल नहीं, आप इनकम्पेटेबल मतलब उनका कंपेटेबल नहीं। वही दूसरे फ्लावर से आए हुए पॉलिन ग्रेन्स विल जर्मिनेट फास्टर। हाँ, yes, flower will recognize its own pollen grains, so they will not allow it to germinate. So it will be like your mummy will be treating your friend as बहुत अच्छा बच्चा है ना, और तुम्हें तो गाली देगी उसके सामने, लाइक जो है वो है, तो यू कांट डिनाई इट ना। हाँ, अगर ऊपर से मैं घर पे आ गया तो हो गया फिर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हो गए तो इट विल बी लाइक देयर आर नो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर डिफरेंट, तो उसका सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांसेस नहीं होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ऑलरेडी ये हो गया। हाँ, pollen pistil interaction. Okay, now the pollination has been done, the pollen gets reached to the where stigma. Now once the pollen reaches to the stigma, now here comes an important role of the your stigma. What will happen when you talk about this reaction, pollen pistil interaction specifically, so the compatible pollen grains which are right type, मतलब कि जो हमारे आगे जाके जर्मिनेट होने वाले, they will be the one, they will pistil मतलब आपका stigma will accept it and they will absorb the water and the nourishment from the surrounding and generate the pollen tube. Once the pollen tube will be generated, the pollen tube from the stigma try to reach out to the ovule, which is known as siphenogamy. और उसी ट्यूब में क्या रहेंगे हमारे, एक ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, दैट इज वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा, दो हमारे मेल गैमेट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। और ये जो हमारा प्रोसेस होता है उस टाइप पे, मतलब ये पॉलन ट्यूब को पहुंचने के लिए गाइड कौन करता है, filiform apparatus which are present in synergids, because they will release certain chemicals which will guide your pollen tube to reach to the destination. Second most important thing, once pollen tube which has been emerged out, it will try to enter into the this one through three different ways. When it enters to the micropyle end, which is known as porogamy, when it enters from chalazal end, chalazogamy, and when it enters from the integument, is known as mesogamy. Okay. Next thing, झालं सांगितलं मी. सिद्धीचा फोन आहे, कट करायचा. Okay. So we'll talk about this one. एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, हाँ दिस इज अ टेक्निक वाइड आजकल आप लोग फेसबुक वगैरह पे काफी देख रहे हो कि बहुत से जापानीज और चाइनीज जो फार्मिंग होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फार्मिंग करने के बाद यहाँ पे इनफैक्ट आप जब हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो उसमें करते क्या हम लोग ने जब वंस ना लिसन केयरफुली, दिस इज द फ्लावर, मैंने क्या बोला था, मेरे पास ये वाला क्रॉप कौन सा है जिसके ऊपर क्वालिटी बहुत अच्छा है बट फ्रूट का साइज बहुत छोटा है, ये फ्रूट का साइज दूसरा है बड़ा है लेकिन क्वालिटी टेस्ट उतना अच्छा नहीं, तो नाउ आई एम डूइंग द क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे जब क्रॉस पॉलिनेशन में करूंगा तो पर्टिकुलरली यहाँ पे उस फ्लावर के ऊपर डिजायर पॉलिनेशन डस्ट करने के बाद आई विल बी बैगिंग इट, बट बिफोर बैग मैंने देखा कि ये फ्लावर बायसेक्सुअल है ना, तो मैं क्या करूंगा, उसके पहले एंथर रिमूव कर दूंगा। क्यों भाई, एंथर रिमूव नहीं कर दिया, बाय द टाइम में थोड़ी
So when talk about the bagging, before that is your emasculation is the technique which has been used in hybridization or the इसमें अभी emasculation मतलब क्या? Removal of anther from a bisexual flower in a bird condition to avoid the self pollination. You are not calculating. तुमने ऐसा नहीं भाई ये मेरे पास रोज का फ्लावर या मेरा हिबिस्कस का इसमें आई विल बी श्योर कि आज ये फ्लावर का बड़े कल सुबह बराबर 4 बजे ये ओपन अप होगा, उसी टाइम पे मेरे पॉलिन ग्रेन एंथर मैच्योर हो जाएगा ना, ऐसा होने वाला है क्या नहीं. वी आर नॉट श्योर अबाउट द टेक्निक्स टाइमिंग. सो दैट इज द रीजन जब इसकी बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलरली, तो एक चीज याद रखना है, वी आर नॉट श्योर शट अबाउट द टाइमिंग एट दैट टाइम. वहां पे जब हम लोग हाइब्रिडेशन करते हैं तो सबसे पहला आता है इमैस्कुलेशन. तो बिफोर हमारा फ्लावर ओपन अप हुए हम लोग बर्ड कंडीशन में थे, अंदर को कट कर दिया, तो भाई बर्ड में ही अंतर मैच्योर होकर पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर के चांसेस खत्म. मतलब कि पहला तो सेल्फ पॉलिनेशन खत्म. दूसरा, उसके बाद मैंने उस बाइसेक्सुअल फ्लावर रहा तो उसमें से मैंने इमैस्कुलेशन किया, फिर मैंने डिजायर पॉलिन ग्रेन डालने के बाद आई विल कवर अप विद दी पॉलीथीन और स्पेशली पॉलीथिलीन बैग से. अभी इस बैग से कवर अप करने का रीजन क्या होता है? मैंने कवर अप कर दिया, हाँ मैंने कवर अप नहीं किया, फॉर एग्जांपल रेस्टिंग करने के बाद ऐसे ओपन छोड़ दिया विंड के थ्रू या कोई और इनसे कोई दूसरे पॉलिन ग्रेन आता है, तो मुझे जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा. माइट बी इससे कंपेटेबल फास्टर कंपेटेबल कोई और पॉलिन ग्रेन आया और वो वहां पे आके स्टिक हो गया और उसकी जर्मिनेशन फास्टर हुआ, आई वोंट बी गेट दी डिजायर रिजल्ट. इसलिए बैगिंग किया जाता है. ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग को इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही. Now come to the double fertilization. Okay, once the pollen grain reaches to the where हमारा pollen grain कहाँ पे आ गया? माइक्रोपाइल एंड या फिर हमारा चलाजल एंड या फिर इंटेग्यूमेंट से एंट्री कर दिया. एंट्री करने के बाद जब स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं तो वहां पे एक चीज हम लोग को याद रखें कि दो मेल गैमेट ऑलरेडी मेल गैमेट फाइट में बन चुके हैं. तो फर्स्ट मेल गैमेट गोज एंड फ्यूजेस विद द एग सेल. First male gamete, egg cell, haploid. It will form a diploid zygote, which is known as syngamy. Syn मतलब fusion, gamy मतलब gamete. First male gamete and the egg cell, इनका fusion, which is form the diploid zygote. इसे हम लोग ने बोला syngamy. दूसरा, second male gamete which has been there, हो जाएगा और फ्यूज होगा हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. तो यहाँ पे हैप्लॉइड और सेकेंडरी न्यूक्लियस इज इन डिप्लॉइड कंडीशन, तो इट विल फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस which is known as gradually lead to the formation of endosperm which is a nutritive tissue. इसे हम लोग nutritive tissue कहते हैं. अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या आएगा? पहला चीज हमारा पॉलन ग्रेन सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएंगे, सीड फॉर्मेशन फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, नए ऑफस्प्रिंग हम लोग वेरिएशन मिलेंगे और हमारा डिप्लॉइड स्टेज रिस्टोर हो जाएगा. कभी भी याद रखना जब फर्टिलाइजेशन होगा मतलब डिप्लॉइड स्टेज विल बी रिस्टोर. ओके, नाउ ये जो एंडोस्पर्म बना दिस ऑफ 3 टाइप, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और तीसरा होगा हमारा एलोबियल. वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर. अभी एंडोस्पर्म क्या है हमारा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना हुआ है. इसका होगा कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन, लेकिन डिवीजन किसका हो रहा है? सिर्फ न्यूक्लियस का हो रहा है. मतलब एक सेल है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हुए. ग्रेजुअली आफ्टर पर्टिकुलर टाइम न्यूक्लियाई विल बी पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी और वहां पे इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, इनकम्प्लीट सेल वॉल. और साइड सेंटर में आपका वही हमारा न्यूक्लियर ये रहेगा, न्यूक्लियर कंटेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल कोकोनट, नारियल पानी पीते हो, एकदम जो पूरा पानी वाला होता है उसमें मलाई बिल्कुल नहीं होता, बराबर है. लेकिन जब पर्टिकुलरली हम लोग हल्का पतला मलाई वाला लेते हैं पानी थोड़ा कम हो जाता है. हम लोग देखते हैं दिस यही जो न्यूक्लियस वाले सेल है दे विल बी पुश्ड टुवर्ड द पेरिफेरी एंड द स्लोली मार्जिन्स विल बी डेवलप. ये होगा मेरा न्यूक्लियर. यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ. सेल वॉल फॉर्मेशन भी हुआ तो इनकम्प्लीट हुआ. एम आई क्लियर? फिर आता है सेल्यूलर. न्यूक्लियर हुआ फॉलोड बाय दी सेल्यूलर सेल वॉल फॉर्मेशन, फॉलोड बाय दी सेल वॉल फॉर्मेशन, उसे हम लोग ने बोला सेल वॉल फॉर्मेशन. और लास्टली आता है हेलोबियल.
तभी वाले में क्या होगा कि हमारा सेल विल डिवाइड इन टू पार्ट, एक होगा चलाजल एंड की तरफ, चलाजल से एंड सेल, और एक होगा माइक्रोपाइलर सेल। तो माइक्रोपाइलर सेल विल बी द वन जो कि हमारा शो करेगा कौन सा वाला, विच विल शो सेलुलर टाइप, और आपका ऊपर वाला शो करेगा न्यूक्लियर टाइप, मतलब जिसमें ऊपर न्यूक्लियस फॉर्म होंगे और सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, नीचे वाले में सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल दोनों फॉर्मेशन। इट्स अ मिक्सचर ऑफ द बोथ, इसलिए उसे हेलोबियल कहा जाता है। तो स्पेसिफिक मोनोकॉट्स में पाया जाता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। वी टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहां पे हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगा, the ovaries or seeds and the ovary into the cell formation. Specifically when talk about the embryonic development, so अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया, हमना था water is your, क्या है हमारा प्री न्यूक्लियर, where the white one is your cellular. Now micropyle end से जब हमारा एम्ब्रियो साइक डेवलपर जाइगोट जहाँ पे सिचुएटेड रहता है, वहां पे मोस्ट ऑफ दिस जाइगोट डिवाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म एज सुन एज, ताकि बाबा क्यों होगा, क्योंकि जब हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम इट शुड गेट द नरिशमेंट ना, वो नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, एंडोस्पर्म करेगा। इसलिए पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, सो दैट की फॉर डेवलपमेंट जो भी नरिशमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी इट विल बी प्रोवाइडेड। फॉर मोनोकॉट सीड्स आर डिफर ग्रेटली, सो यहाँ पे अगर हम लोग एम्ब्रॉयनी विल बी द डेवलपमेंट इज सिमिलरली, ओके, अर्ली एम्ब्रॉयन डेवलपमेंट, बट अर्ली स्टेजेस। अभी क्या होता है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस टू कॉटिडॉन डाइकॉट में फॉर्म होंगे, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रॉयनल एक्सिस अबव द लोअर कॉटिडॉन इज एपिकोटाइल एंड द लोअर वन इज योर हाइपोकोटाइल। ओके, लिसन, जब हम लोग ने देखा कि हमारे दो सेल्स में, पहले स्पेसिफिकली अगर मोनो डाइकॉट का देखेंगे तो दो सेल्स का डिवाइड होगा, एक होगा बेसल, एक होगा टर्मिनल सेल्स। और बेसल सेल्स में आपका हॉस्टेरिया सस्पेंसर सेल्स पर भी डेवलप, वहां पे उसका आपका प्री एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसका प्री एम्ब्रियो ऑक्टन बनेगा, है कि नहीं, याद आ रहा है, क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टन हम लोग ने बनाया था, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, सर्कुलर, फिर डेवलप हॉर्सशू हार्ट शेप स्ट्रक्चर, फिर आपका हॉर्सशू स्ट्रक्चर डेवलप। काफी हो गया। ओके ओके, नाउ लिसन। तो जब हमारा रेडिकल डेवलपमेंट जब होता है, स्पेसिफिकली रेडिकल मतलब कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, मतलब रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस इनके बीच वाला पार्ट इस होता है हाइपोकोटाइल, प्लूमिल और एम्ब्रियोनल एक्सिस इसके बीच वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल। ओके, और स्पेसिफिकली इन केस ऑफ मोनोकॉट अगर हम लोग देखेंगे कि मोनोकॉट में अगर हम लोग देखेंगे एपिकोटाइल आपका सॉरी दिस रेडिकल और प्लूमिल के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और मोनोकॉट का जो पेपरी कॉटिलिडॉन होता है उसे कहते हैं हम लोग स्कूटेलम, क्या कहते हैं, स्कूटेलम। और वहां पे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, जो हमारा प्लूमिल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे कहा जाएगा कोलियोप्टाइल, और जो हमारा रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे कोलियोराइजा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, एक होता है आपका अल्ब्यूमिनस, दूसरा होता है नॉन अल्ब्यूमिनस, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस। तो नॉन अल्ब्यूमिनस मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसे सीड्स जिसके डेवलपमेंट में पूरी तरह एंडोस्पर्म यूज हो चुका है, देयर विल नॉट बी अ स्मॉल ट्रेसेस भी नहीं रहेगा, पूरी तरह एंडोस्पर्म हैज बीन यूटिलाइज्ड, उसे हम लोग कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है। और देयर आर सर्टेन सीड्स जिसमें आपका एंडोस्पर्म यूटिलाइज तो होगा बट सम ट्रेसेस विल बी देयर, सम एंडोस्पर्म विल बी इनफैक्ट देयर इन दिस सीड्स, उसे हम लोग कहते हैं
जैसे कि कोकोनट, सनफ्लावर, व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, पी, ग्राउंडनट, फिर बीन्स, इनमें हमारा एंडोस्पर्म पूरी तरह यूज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट सीड्स फ्रॉम द ओवल. अभी जब बात करेंगे हम लोग ओकेजनली सम सीड्स, ब्लैक पेपर, रिमेनेंट, मतलब जो न्यूसेलस होता है. ओके, कितने लोगों ने ब्लैक पेपर हाथ में लिया? सभी ने देखा है ब्लैक पेपर. काली मिरी. तो वहां पे न्यूसेलस विल बी रिमेन एज इट इज परसिस्टेंट, उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म. बट इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे, उससे सीड को डेवलप होगा. और इन सीड को डेवलप होने के बाद जब देखते हैं ओवरी वॉल जो होगी, इट विल बी डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल, जिसमें आगे जाके हम लोग देखेंगे 3 लेयर्स फॉर्म होते हैं. कौन सा? एपिकाप, मेसोकाप, एंडोकाप. बराबर है. तो पेरिकाप बोलते हैं हम लोग, एपिकाप, एंडोकाप, मेसोकाप. मेसो एंड एंडो, सॉरी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट 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 सीड का एडवांटेज, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद इंडिपेंडेंट ऑफ सीड्स आर फॉर्म आर मोर डिपेंडेबल, बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज, डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट्स, हेल्प्स स्पीशीज कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, फूड रिजर्व भी होगा, यंग सीडलिंग्स आर नरिश अंटिल दे आर कैपेबल. देखो, जब ऐसा है कि भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस करते, लेकिन ऐसा है कि मैंने सीड बो दिया और कल को वहां पे जो प्लांट है डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस नहीं. बाय द टाइम जब हमारा ग्रीनर पार्ट डेवलप होता है, तब तक वहां नरिशमेंट देने का काम, प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? सीड करता है, नरिशमेंट देने का, डेवलपमेंट का. The hard seed coat protect young embryo. In fact, there are certain genetic recombination हम लोग नया बनने के लिए हेल्प आउट करता है. और डिहाइड्रेशन, देखो हमारी मम्मी है ना, जो हमारे सीरियल्स, इवन चना, मूंग, मटकी जो भी रहेगा, वो फ्रीजर में रख देती है कभी कभी, या फिर हमारा क्योंकि बाहर खराब ना हो जाए, कि इवन उसके बाद भी अगर रखोगे आप, वो रखेगी जब सब्जी करनी रहेगी, या फिर उसको जब ये स्प्राउटिंग करना रहेगा, निकालेगी बाहर, उसमें थोड़ा सा लुकवार्म वाटर डालेगी, टाइम रखिए, पानी पानी निकाल लिए, एक कपड़े में बांध के रख दिए, तो स्प्राउटिंग होना चालू हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने भले ही लो टेम्परेचर में होने के बावजूद भी सीड्स से फॉर्मेशन, बाद में जर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके सीड का खासियत होता है कि इवन हार्श कंडीशन में वो डॉर्मेंट रहते हैं. एज सुन एज कंडीशन बिकम फेवरेबल, इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट. ये ठीक है. ओके, दो जो फ्रूट हमारा फ्रूट वॉल्स, जो फ्रूट ओवरी से डायरेक्ट डेवलप होता है, उसे हम लोग फ्रूट कहते हैं. स्पेसिफिकली अगर डायरेक्ट सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है उसमें, तो उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम ओवरी सम अदर पार्ट है उसमें इन्वॉल्व, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ये ऑलरेडी हम लोग ने कवर अप किया हुआ है 11th में, तो नॉट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे हम लोग. एक बार 11 का टॉपिक रीड कर लेना. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. हाँ, apomixis. So apomixis is the production of seeds without fertilization. Some species like Astraceae and gases, it is a form this asexual mode of reproduction which mimics the sexual. भले ये दिखने में सेक्सुअल जैसा रहेगा, बट इट्स अ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं. देखो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन बगैर सीड प्रोड्यूस हो रहा है. अभी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी. बट वहां पे जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं उसमें सीड फॉर्मेशन, यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है. ओके, नेक्स्ट. पॉलीएम्ब्रेनी अपोमेटिक सीड, मतलब कि यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन हम लोग ने किया रिडक्शन डिवीजन से. यहाँ पे मेनी स्पीसीज लाइक साइट्रस, मैंगो वैरायटी, न्यूसेलस जो सेल्स होते हैं उसके सराउंडिंग में एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में दे विल डेवलप एंड ईच वहां पे आपके मेनी एम्ब्रियोज विल बी फॉर्म. एक से ज्यादा जब एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी. नेक्स्ट. ओके, द सीड्स फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन. अगर आप वहां पे देखेंगे वहां पे से प्रोजेनी डेवलप हो जाएंगे एंड इट विल बी द वन दैट आर लूज, हाइब्रिड कैरेक्टर लूज आउट हो जाएगा. If the hybrids are made into the apomictic, there is no segregation of character hybrid progeny, so that the farmers can keep the using hybrid seed for the new crop as well. That's it. बट एक बात याद रखना, पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस में फर्क ये होता है, एपोमिक्सिस में सीड्स फॉर्मेशन होता है और आपका इसमें पार्थेनोकार्पिक में नहीं. इसी के हाँ, तो लेट्स
थोड़ा से कुछ ये करते 5 मिनट का ब्रेक ले लो।
adaptation for the antifolia to attract the insects. Okay. Second, so when the pollen tube enters ovule through the micropyle end, Arya, when the pollen tube enters in the ovule through the micropyle end is known as poroia. Okay, syngamy is the result of Chetali. Result in syngamy. Huh? काय एंडोस्पर्म की जायगोट it's diploid zygote. Like endosperm is always triploid. नेहमी लक्षात ठेवा. आणि सिनगॅमी, सिन म्हणजे फ्युजन, गॅमी म्हणजे गॅमेट्स, गॅमेट्सचं फ्युजन इज युअर सिनगॅमी. ओके. Female gametophyte in flowering plant develops after female gametophyte. 1 meiosis, 3 mitosis. Next. The sensor cell is your developed from the hostorium. Okay. Graft ह्याच्यामध्ये बघ ते सोड. ह्याच्यामध्ये काय येणार? Grafting cannot be done in monocot because they lack vascular bundles. Cross pollination does not occur in cryptogamous flowers. Okay, now the अभी आते हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर कर. बस तो दिसणार ना आर्या म्हणून थोडं हे करतो. चष्मा लावलास ना तू. An angiospermic male plant with the 24 chromosomes in its pollen mother cell cross with the female plant bearing 24 chromosomes in a root cell. What would be the ploidy of embryo and endosperm? How? So, but इथं the female plant च्या root cells ला 24 chromosomes दिले. So how could it? Okay, when you talk, look at here. What we got over here? ओके यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो 24 क्रोमोसोम्स इसमें, so 24 chromosomes in your pollen mother cell. So your microspore mother cell will consist of 2n equal to 24. So microspore will be formed after meiosis. It will n is equal to 12. Now we'll talk about the 24 chromosomes in the root cells. So again, the female plant 2n is also equal to, so n is equal to, sorry. So n is equal to 12 in female and n is equal to 12 in male. So 2n, that is diploid zygote, is equal to n equal to 2 into 12 equal to 24. लेकिन वही अगर बात करेंगे एंडोस्पर्म 3n, it will be the 3 into 12, it will be a 36. So answer is this. Okay. रुक ऐसे एक और सवाल. If there are 1280 microspore in a tetralocular anther, how many microspore mother cell will be there in each pollen chamber? Duraj. Huh? 1280 in each chamber. How? Huh? 240 कसं?
240 से 4 टाइम्स किती होतं बाळा? 960 होईल. हा 1280. How? So beta, here the answer is your how? I'll explain. थोड़ा समझो नालायक है. ओके, तो इस टेट्रालोक्यूलर होल मतलब 4 लोक्यूल अंतर है, 4 चेंबर से, मतलब पॉलन सेक में कितने, 1 2 3 4, 4 चेंबर है. 4 चेंबर में 1280, मतलब ईच चेंबर में कितना आया, 1280 डिवाइड बाय 4, इट विल बी अ 320. 320 यहाँ पे, 320 यहाँ पे, 320 यहाँ पे और 320 यहाँ पे. ये क्या आ गए हमारे माइक्रोस्पोर. क्या आ गए, माइक्रोस्पोर. बट 4 माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं. तो ये 320 माइक्रोस्पोर विल बी गिव कितने से आएंगे, इट विल बी 320 डिवाइड बाय 4, इट विल बी द 80 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहेंगे, जिससे हमारा पॉलन माइक्रोस्पोर बनेंगे ना. समझे नहीं? ओके, टोटल 1280 समझा. कितना हमारे पास है माइक्रोस्पोर, कितने हैं मतलब पॉलन ग्रेन कितने हैं, 1280 बराबर है. उसको 4 चेंबर में डिवाइड किया तो कितना हुआ, 320 हर एक चेंबर में. लेकिन माइक्रोस्पोर्स आर दी हैप्लॉइड, और हमें पूछा क्या है बेटा यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल. अभी हर एक पॉलन ग्रेन हमारा किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से ना. लेकिन एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारे कितने बच्चे, मतलब ये होता है, बच्चे ने बोला सॉरी, माइक्रोस्पोर बनाता है 4, बराबर कि नहीं. तो हमारे मदर सेल्स कितने हो गए, 4 पॉलन चेन के माइक्रोस्पोर से, मतलब एक मदर से 4 बनेंगे. तो यहाँ पे हमारे 4 बच्चों की कितनी माए रहेंगे, इन शॉर्ट 80 ना. 4 की एक रहेगी तो 320 की कितनी रहेंगी, 80 ना. अलग है तुम लोग. ओके, से बहुत ऐसे क्वेश्चन इस शीट में बहुत ऐसे. हाँ हाँ, अंगडे 22 विचारत तुला मी. आन्सर 24 इज आन्सर. यस सर. हा नाही क्वेश्चन वेगळा आहे बाळा, नीट बघ जरा. क्वेश्चन बघायचं ना, डायरेक्ट केलं होतं ना. ओके, करो 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 करो. बोल. हा, तू बोल बोल. 24 क्या, आकर कैलकुलेट कर मत सांग. तरी शेवट डोकं नको खाजो, गुडघ्याला भोग पडतील. ओके, द आंसर इज 30. असं सांगतो. नाउ व्हाट, हमारा जो 3n होता है, 3n कैसे होता है, 2n + 1n होता है ना. 2n फ्रॉम दी सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड n फ्रॉम दी मेल गैमेट. 2n कितना है यहाँ पे फीमेल गैमेट का, और n कितना है, 2n 12 है ना, तो n इज इक्वल टू, ऐसे सवाल तुम्हें पूछे जाते हैं बाबा सीईटी में, तो भी हम लोग से होते हैं.
द करेक्ट सिक्वेन्स इव्हेंट ड्युरिंग द डबल फर्टिलायझेशन इन एंजियोस्पर्म 2016 विचारलेला क्वेश्चन आहे. बघा ना मी द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स ड्युरिंग हा पहिले काय होणार ते सांग सिक्वेन्स सांग. हा 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 ओके व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वन थोड़ा समझो सिक्वेन्स समझ लो. हो बाबा ये लवकर. अरे नाही होत ना बाळा तर बघ. ओके सो इट विल बी द वन. यहाँ पे हमारा एक सेल, यहाँ पे सिनर्जिड, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स और यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस. बराबर कि नहीं. तो फर्स्ट पॉलिनेटिव विच हैज बीन बराबर है. यहाँ से जो फर्स्ट मेल गैमेट विल बी फ्यूज विद दिस वन टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट. बराबर है. तो सबसे पहला ये क्या होगा पोरोगैमी माइक्रोपाइल के एंड के थ्रू आ जाएगा. फिर ये होगा फ्यूजन तो पहला होगा सिनगैमी और जो सेकेंड मेल गैमेट इट विल गोज ओवर हियर एंड विल फॉर्म द ट्रिपल फ्यूजन. बाळा एकच ट्यूब 3 ठिकाणी एंटर कसं करेल म्हणजे पुरुषच्या ऐवजी इथं वरती नेक्स्ट झाला नाही तसं ऑप्शन कधीच येणार नाही. प्रेग्नन्सी एक तर आयव्हीएफ ने कन्सीव्ह होईल किंवा नॅचरली होईल. बघाय गायब आता त्या हे जो बंद क्लोज करत नाही ना करून बघा काय करायचं. ते ऑन ऑन ऑफ बरं जे ते ऑफ केल्याशिवाय हे वरती होत नाही. If the cell of the nucellus in the angiosperm ovule is 24 having 24 chromosomes, what will be the number of chromosomes in the endosperm of a self-pollinated flower? न्यूसेलस मधल्या सेल्स पासून एमएमसी बनते. एमएमसी पासून न्यूसेलस नाही बा. काय हे तू लॉजिक नको वापर. तुझा लॉजिक खतरनाक आहे. श्रेया 36 will be आंसर. ओके प्रियंका तो फिर शांत बैठी बता इसका आंसर 28 का. अब भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था. कोई भी बोलेगा नहीं. नको सगळे कंट्रोल. एपो यस यहाँ पे अगर सीड फॉर्मेशन आया इसलिए वहां पे हम लोग ने एपोमिक्सिस बोला. फ्रूट फॉर्मेशन आता विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इट विल बी अ पार्थेनोग्राम. शाबाश होशियार हो गए बच्चे मेरे. हाँ पार्टी देतो ना तुला मी. $41. In angiosperms, a male gametophyte is developed from a pollen mother cell by 1 meiotic, 2 mitotic division, 2 mitotic division, 1 mitotic, 2 meiotic division, 1 single mitotic division. हाँ बड़ा इधर यहाँ पे पूछा गया हम लोग को पॉलन मदर सेल से हम लोग को मेल गैमेटोफाइट डेवलप करना है. तो पहले पीएमसी से क्या आ जाएगा उसका मियोसिस होके बनेगा पॉलन ग्रेन. बराबर है. तो एक मियोसिस हो गया फिर हमारा उसके बाद 2 बार माइटोसिस होगा. तो इट विल आंसर इज योर ए. $42 का क्या आएगा. प्रोजेनी रिजल्ट फ्रॉम दी क्रॉस pollination are genetically stable, always sterile, homozygous and less viable, genetically variable. It's a genetically variable. याद रखना कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन वाला स्पीसीज हमेशा स्टेबल नहीं होता. इट्स नॉट नेसेसरी. अगर वैसा होता तो इट वुड हैव बीन इजीली हम लोग कोई भी जीन इनकॉर्पोरेट कर पाते थे.
So the other thing. Okay, I 2 minutes. People काय बोलते
ओके ओके, पहले ऐक. How many pollen grains are produced from a diathecous tetralocular anther with a 75 microspore mother cell? 75 into 4, 300 into 4. कारण चार एकापासून 4 बनले आणि 4 चेंबर आहेत ना. ठीक आहे. ड्युरिंग डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सॅक अ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज 1 meiotic 3 mitotic. अजून एक क्वेश्चन होता थांब रे. If the number of chromosomes in endosperm of a seed is 21, what will be the chromosome number in secondary nucleus? क्रोमोसोम एंडोस्पर्म में 21 है. हाँ, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 ये 3n इज इक्वल टू 21 है, तो 2n विल बी 14. समझा? याचं सांग आर्या. हे तू आन्सर बरोबर सांग, मी आता सोडतो सगळ्यांना. एक्सप्लेन विथ एक्सप्लेनेशन पाहिजे मला. For the formation of 140 angiospermic seed, how many meiotic cell divisions are expected? Thank you. बोलो मैं सोडणार नाही. ओके. One male gamete. So now listen. So one male gamete will be dissolved from the devolution for the 0.25 meiotic division. कितने लोगों को ये समझा? Okay. One microspore mother cell undergo meiosis will produce 4 microspore. बराबर है? हाँ. So we require 140 angiospermic seeds, मतलब 140 माइक्रोस्पोर चाहिए. तो 140 के लिए हमें कितना meiosis डिवीजन, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल का ये करना पड़ेगा? 1 से 4 मिल रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए 140. तो मैथ्स लगाओ ना. अगर 1 इक्वल 1 गिव्स टू 4 और आपका इससे कितना आएगा? x इज इक्वल टू 140. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x इक्वल टू 140. x इज इक्वल टू नहीं बराबर ना 135 आएगा ना, सॉरी 35 आएगा ना. तो इट विल बी दी फॉर 140 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन 35 meiotic divisions will be takes place. बराबर, इतना समझा? ये हो गया मेल गैमेट का. नाउ 1 मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis, forms मेगास्पोर टेट्राड. कितने लोगों को ये पता है ना? 3 डी जनरेट होते हैं, एक ही फंक्शन रहता है. मतलब मुझे इससे 1 फंक्शनल मेगास्पोर मतलब एक ही मिलेगा. बराबर, मतलब 140 में फीमेल गैमेट बनाने के लिए मुझे तो टोटल विल बी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. हाँ नहीं. नीटचा बॅकअप सीडी ठेवला. सीडीला बॅकअप आपल्याला बीएससी ठेवावा लागेल. पण दिस आर द सिंपल क्वेश्चन्स, जस्ट ट्रिकी क्वेश्चन्स वी नीड टू. आणि ह्याच्यामध्ये कसं आहे, निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे ना युवराज.
तू इथे अटेम्प्ट करू शकतोस. आणि दुसरी गोष्ट थोडासा विचार केला, आता ह्याच्या आधीच्या क्वेश्चनला बघितलं अपोमिक्सिस सीडचं ऑप्शन होतं त्याच्यामुळे 200 मार्क. मॅथ्सच्या एका क्वेश्चनला 2 मार्क असतात, बायोच्या एका क्वेश्चनला 1 मार्क, एका क्वेश्चनला 1 मार्क. मॅथ्सला टाइम लागतो ना. मॅथ्सला फिजिक्स 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, मॅथ्स 100 क्वेश्चन, सो इट विल बी 200 क्वेश्चन. नाही सॉरी, बायो 100 क्वेश्चन. एक 12th याच्यामध्ये सगळं ते सोडून दे. आणि ते याच्यामध्ये पण दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये बघशील मॅथ्स मध्ये 50 क्वेश्चन असतात, प्रत्येक क्वेश्चनला 2 मार्क्स. बायो मैथ्स रहे या बायो रहे, मैथ्स तो छोड़ना मत ऑप्शन कुछ भी. गलती से 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ने की कोशिश करो कि भाई 10 में से 5 भी तुक्के लगे. नेगेटिव नहीं, शेड्यूल नेगेटिव नहीं ना. हाँ ना तो सर ओके. चल चल रुक. चेक करा ना आमचे बरोबर आहे की वगैरे मला क्वेश्चन बघा ना 50 वाला. The megasporangium in a angiosperm is bitegmic. Bitegmic म्हणजे इंटेग्युमेंट्स किती असतात? इनर अँड आउटर ना, युजली बायटेक्निक. बरं झाले दुष्परिणाम बाकी थेरोटिकल तुम्ही कराल म्हणून मी त्याच्यात हे नाही केलं. कॉल करा ना Right? If a chromosome number in a cells of integument is 10, then what will be the chromosome number in synergids? And definitive nucleus मतलब आपका secondary nucleus. कसं करणार बाळा अँटीबॉडीचं? आर्या याचं उत्तर दिलंस ना. दोन्ही आर्या आहेत ना, दोघी आर्यांना बोलतो मी. दोघी आर्याने जर आन्सर सांगितलं, दिस विल बी द लास्ट MCQ ऑफ द डे. अदरवाइज आय विल टेक मोर MCQ. ट्रिकी ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे नालायक. तुम्हाला मी सांगतो, आपले जे इंटेग्युमेंट्स आहे, आपलं अॅनाट्रोपस ओव्हल असतं ना, अॅनाट्रोपस ओव्हल मध्ये इनर इंटेग्युमेंट, आउटर इंटेग्युमेंट, बरोबर आहे. त्या इंटेग्युमेंट्स मध्ये आर्या इथे लक्ष दे, तुला पण आन्सर द्यायचं. तर त्या इंटेग्युमेंटच्या क्रोमोझोमचा नंबर 10 आहे. हा, ऑन द बेसिस ऑफ दॅट तुला त्यांनी विचारलं सिनर्जिड्स, डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस आणि अँटीपोडल सेल्स याच्या सेकंडरी न्यूक्लियस, तर त्याच्यामध्ये किती क्रोमोझोम्स असतील? डी ऑप्शन, बी असं काय? तुका मारलं बाबा बरोबर आहे. ओके मी सोडत नाही बस. ओके नाव लिसन, we'll talk about the structure. पण नाही सोडणार असं का बोलायचं सर, वाजलेला 10 जास्त मन दुखवतं आमचं. कॉलेज
ओके अरे तो इट वाज लाइक यहाँ पे हम लोग को मिला ये नंबर कितना है 10 है, इसके सेल्स का नंबर 2n इज इक्वल टू 10 बराबर है। नाउ टॉक अबाउट दिस वन। अभी n इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमारा एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स n इज इक्वल टू 5, एंटीपोडल सेल्स का आ गया। सिनर्जीज अगेन n इज इक्वल टू 5, बट व्हाट अबाउट सेकंड न्यूक्लियस 2n इज इक्वल टू, तो बराबर है नहीं। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, मैंने ऑलरेडी ये ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर दिया है तुम्हारे। ओके